Hello students, welcome to mathematics class. In our previous class we had a live session in which we had discussed some questions of exercise 2.5. Okay, so rather than saying some question, we only did question number 1, okay, and question number 2 was your homework. So now we will begin with question number 3 as our today's lecture. Okay, so question number 3 we have 5 by 8 fraction of the total number of tickets for a circus shown circus show were sold for children. Okay, find the number of tickets sold for adults if the total number of tickets sold was 3200, that means 3200. Okay, so there was a circus show and total number of tickets are 3200. Okay, and out of these 3200, 5 by 8 part of these were sold for the children. Okay, and the remaining are sold for the adults. So you have to find the number of tickets sold for the adults. Okay, so if you look at this, okay, let us draw a circle and let us make 8 equal parts. So 1 2 3 4 5 6 and 7 8. Okay, so out of these 5 by 8, okay, 5 by 8 means 1 2 3 4 5. So this part, okay, this part is sold, this part is the number of tickets sold for children. Okay, and the remaining is for the adult part. Okay, so you have to find the number of tickets sold for adults. So first what we do in the word problems, we always start with what we have given. Okay, so what you have given is total number of tickets. So total tickets are 3200. Okay, and then tickets sold for children are tickets which sold for children. How many tickets? You have to find that. Of course you have to find that how many tickets, but we have given the fraction of it, so we will write 5 by 8. Okay, and 5 by 8 of what? 5 by 8 of, यहाँ पे लिखा आपके पास में 5 by 8 of the total tickets. So 5 by 8 of total means total ticket कितनी आपके पास 3200. So 5 by 8 of 3200. Okay, and that means 5 by 8 of 3200 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है. Okay, so what you have here is you will multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So denominator में आपके पास 1 है. Okay, now you see you can divide 32 by 8. So 8 times 4 is 32 and after 32 you have 2 more 0, इसलिए आप यहाँ पे 2 0 लगा देंगे और 8 times 1. Okay, so that will be become 5 into 400, which is equals to 5 4 20. Okay, so 2000 tickets are sold for the children. So how many tickets for adult? So tickets sold for adult will be total ticket minus the ticket sold for children. तो टोटल कितनी है आपके पास में? टोटल है 3200 और चिल्ड्रन के लिए कितने सोल्ड हुई? वो ही 2000. तो आपके पास में बचेगी 1200 टिकट्स. ओके, इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं. कैसे? 5 by 8 आपने अभी देखा फ्रैक्शन में, 5 by 8 जो है वो चिल्ड्रन के लिए, तो बाकी जो रिमेनिंग कितने हैं वो एडल्ट के लिए होगी. तो रिमेनिंग कितना है? 1 2 3 3 आउट ऑफ 8 पार्ट, दैट मीन्स 3 by 8. सो अगर इफ़ यू कंसिडर दिस, ओके, मैं यहाँ पे रफ लिख रहा हूँ. ठीक है, ये रफ में दूसरी मेथड है. इफ़ यू लाइक यू कैन डू इट. सो इनका फ्रैक्शन कितना है एडल्ट का? 1 2 3, दैट इज़ 3 by 8. तो 3 by 8 ऑफ टोटल टिकट इज़ 3200. ओके, 3 by 8 of 3200, दैट मीन्स 3 by 8 मल्टीप्लाई विथ 3200. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3200 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड हो जाएगा. 8 1 8, 8 4 32. सो व्हाट यू गेट हियर इज 3 मल्टीप्लाई विथ 400 विच इज इक्वल्स टू 1200, सेम एज दिस. ओके, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन अप्लाई हियर.
Okay, so now let's move to the next question. We did question number 3, so question number 4 will be your homework. Okay, now we will move to the next question, which is question number 5. So according to question number 5, what we have is, it took 1/4 of an hour for Ramani to stitch an embroidery pattern on sari. Okay, if Ramani has to stitch 135 such patterns, how much time in hours will be required by her to complete the work? Okay, एक लेडी है रमानी नाम की, उन्होंने वो क्या कर रही है, एक साड़ी, आपने सबके साथ सबने घर में साड़ी देखी होगी, साड़ी ऐसे होती उनके ना, उस साड़ी में, ठीक है, ये साड़ी एक आपका एज्यूम कर लीजिए, साड़ी में कुछ ना पैटर्न्स होते हैं नीचे नीचे, जैसे लेस लगी रहती है और एटसेट्रा, स्टार बने होते हैं किसी किसी में डॉट डॉट होता है। ओके, तो इस तरह का जो वर्क होता है ना, वो रमानी कर रही है। ओके, सो रमानी क्या कर रही है, रमानी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न पे कुछ स्टिच कर रही है। ठीक है, तो स्टिच करने में उनको कितना टाइम लग रहा है, एक पैटर्न पे, एक साड़ी स्टिच करने में 1/4 आवर लग रहा है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, अगर ऐसे ही एक 135 स्टिचेस किए हैं रमानी ने, तो कितने आवर्स में वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो व्हाट should we do first here is, we will start with writing given. So we have given is time taken by Ramani to come to stitch one embroidery pattern on sari. कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है 1/4 आवर। ओके ओके, अब ये व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर इज, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी आवर विल शी टेक फॉर 135 सच पैटर्न्स। ओके, सो 1 स्टिच लगाने के लिए लग रहा है 1/4, तो 135 स्टिचेस के लिए कितना लगेगा, 135 के लिए लगेगा 1/4 इंटू 135, इजंट इट। तो आप कर लेंगे, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू stitch 135 such stitches। ओके, इसको आप करेंगे रफ में। stitches, stitch, sorry, okay, so 1/4 multiply with 135, that will be equals to 1 multiply with 135 by 4, which is equals to 135 by 4. Okay, so again it is an improper fraction, so we will convert it into the mixed fraction. So it will equals to 33 3 4, 3/4 r. Okay, so that is the answer of this question. Okay, very easy, isn't it? Okay, now let's move to the next question, question number 7, because question number 6 will be your homework. Yes. Okay, so in question number 7, what you have is 2/5 kg of butter is used to make 1 cake. Okay, find the number of cake that can be made using 12 4/5. Okay, see 12 यहाँ पे जो है वो इस तरह से 12 4/5. ओके, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। ओके, सो व्हाट यू हैव हियर इज 1 केक को बनाने के लिए, ठीक है, एक केक को बनाने के लिए लगता है 2/5 kg बटर। तो आपके पास में अब क्या दे रखा है, टोटल बटर दे रखा है कि 12 4/5 जो बटर है उससे नंबर ऑफ केक कितने बनेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर मेरे पास में रोल है, ठीक है, मेरे पास में 10 चॉकलेट रोल है, ठीक है, चॉकलेट रोल 10 चॉकलेट रोल है, ऐसे 10 चॉकलेट रोल है, ठीक है, उनको मैं ऐसे खोल के ऐसे ओपन होंगे तो ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बनेगा, और मैं उनको से ऐसे गोल गोल पीसेस काटूंगा इसमें से कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। तो एक रोल में से अगर 4 पीस कटते, ओके, 4 पीस ऐसे कट रहे और
ओके, तो 60 पीसेस, ठीक है, ऐसे 60 पीसेस के लिए कितने रोल लगेंगे आपको? ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो आपके पास में पीसेस है वो, और एक पीस को बनाने के लिए जो रोल लग रहा है वो, उसको ऐसे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ऐसा ऐसा कुछ इस तरह से आता है, इजंट इट? सो ऑफ कोर्स दिस इज इन द रफ वर्क। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे 2/5। अगर एक केक को बनाने के लिए 2/5 kg बटर लग रहा है, तो 12 4/5 बटर जो टोटल है हमारे पास में, उससे कितने केक बनेंगे? तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2/5 से। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद राइटिंग गिवन। सो व्हाट यू गिवन इज, वी हैव गिवन बटर used to make one cake. How much butter you used? 2/5 kg. Okay, and how much quantity of available butter you have? You have available butter equals to 12 4/5 kg. Okay, so it is in the mixed fraction. So first you will write it into the improper fraction form. So it will become 12 into 5 plus 4. Okay, अब तक आप सबको आ गया होगा कि mixed fraction, how to convert mixed fraction into improper fraction form. Okay, so it will become 64/5 kg. Okay, so now what you have to find is, you have to find the number of cakes. So quantity of cakes. Okay, so number of, therefore number of cakes will be, okay, so how to find this? You have to divide the available butter by the butter used for one cake. Butter used for one cake. ओके, सो अवेलेबल बटर कितना है आपके पास में? आपके पास में अवेलेबल बटर है 64/5 kg, और बटर यूज्ड फॉर वन केक कितना है, कितने, एक केक में कितना बटर यूज़ हो रहा है? वो है 2/5। ओके, नाउ यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। 64/5 को आप डिवाइड कर रहे हो 2/5 से, इजंट इट? डिवाइड के नीचे ये है, ये फ्रैक्शन का। ओके, सो now you have division of two fraction. Okay, you already know how to solve this. Okay, so division के जो लेफ्ट में लिखा है आप उसको as it is लिखेंगे, ठीक है। डिवीज़न को आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में आप, और ये जो राइट में लिखा होता है डिवीज़न के, उसका आप करेंगे रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल, तो 5/2. Okay, so what you have here is 64 multiplied 5, because you multiply numerator with numerator and denominator with denominator. 5 multiply with 2. Okay, तो ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 डिवाइड करेगा 64 को 32 टाइम्स। ओके, 2 1 2 and 32 times 2 is 64. So what you have here is 32/1, which is equals to 32. Okay, so number of cakes which will be formed from 12 4/5 butter is 32 cakes. Okay, so this is the end for the exercise 2.5. okay, why it is end? Because क्वेश्चन नंबर 8 विल बी होमवर्क। ओके, तो आपके लिए आज 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो बिफोर दैट some students, I don't think some students, but 1 or 2 students were not able to solve क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए होमवर्क था, ओके, लेट मी डू यू फॉर इट यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में क्या था? व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to find the number of bananas. Okay, so first let me read that question again. Okay, so question number 2 says, in a basket there are 120 fruits. Okay, so first we will write given total number of fruits. Okay, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं कर पाए, and they find difficulty in solving this question. So what you have, total number of fruits are 120. Okay, and then you have 1/4 of them are pineapples, 1/4 of them are apples, and 1/2 of them are oranges. So pineapples will be pineapples
Okay, so I should write here number of pineapples. Okay, so number of pineapples is 1 by 5 of them. 1 by 5 of them. Them means total number of fruits. Total क्या है आपके पास में 120. तो 1 by 5 of 120. That means 1 by 5 multiply with 120, which is equals to 1 multiplied 120 by 5. You can divide 5 by 12. 5 ones are 5, 2 are 10, 24 will be equals to 24. Okay, so number of pineapple is 24. Okay, then next you have is number of apples. Number of apples you have equals to 1 by 4 of 120. So 1 by 4 of 120 means 120 multiplied 1 by 4. So 1 by 20 by 4 equals to 30. That is equals to 30. Okay, then next you have number of oranges. So number of oranges equals to half of them 1 by 2 of 120. So 1 by 2 of 120 simply means 1 by 2 multiplied 120. That means equals to 60. So that will be 60. Okay, and then rest are the bananas. So number of bananas are, जितने बाद में जो बचेंगे वो बनाना से, तो 24 है, 120 में से 24 पाइनएप्पल्स हो गए, 30 एप्पल्स हो गए, 60 ऑरेंजेस हो गए. जो इसमें से रिमेनिंग होगा वो नंबर ऑफ बनाना से. तो रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, 120 में से माइनस करोगे. इन सबको ऐड कर लेते पहले. ओके, सो व्हाट यू गेट हियर इज 120 माइनस 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 4 इज 94, 94 एंड 114. So that will be equals to 6. Okay, so that is the answer of this question. Okay, so now from this we end our chapter number 2. That is the end of chapter 2. Okay, so but this is the end for me because you have to do your homework. आपको अपना होमवर्क करने के बाद में ही ये एंड ऑफ चैप्टर 2 लिखेंगे. ठीक है, सबसे अच्छा लिखने में यही आता है पूरे चैप्टर में, एंड ऑफ चैप्टर 2 की चैप्टर खत्म हो गया. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू योर टेस्ट. ओके, सो मंडे को आपका टेस्ट होगा. ओके, तो मंडे को डेट क्या है, मंडे को डेट है 10th of अगस्त. ओके, सो 10th of अगस्त को क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा. ओके, टेस्ट विल बी सम क्वेश्चंस MCQ होंगे, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे. ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, टेस्ट देना है. टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू होगा. मैं आपको जो मंडे को या तो अगर हुआ तो मैं मंडे को आपका लाइव क्लास ले लूँगा. अगर लाइव क्लास हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है. ओके, अगर मंडे को अगर लाइव क्लास हो जाती तो आप मंडे का टेस्ट होगा आपको. और अगर मंडे को लाइव क्लास अगर नहीं होती हमारी, तो जब आपकी लाइव क्लास होगी दैट इज़ वेडनेसडे को. ओके, तो वेडनेसडे को फिर आपका टेस्ट होगा. ओके, तो आपके पास में 2 डेट है, या तो 10th of अगस्त को होगा टेस्ट और 12 of अगस्त. अगर 12 का आई थिंक हॉलीडे है, जन्माष्टमी. ओके, सो लीव इट 12. ओके, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जो 10th तारीख है, 10 तारीख के दिन ही हमारा टेस्ट ले लेंगे. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे गूगल फॉर्म को यूज़ करना है. यू हैव टू यूज़ दैट एंड यू हैव टू गिव योर टेस्ट इन दैट गूगल फॉर्म थ्रू ऑनलाइन. ओके, आपको ऑनलाइन ही देना है. और उसके बाद में जो भी अच्छा परफॉर्म करा है, मैंने जैसे मैंने आपको सबको प्रॉमिस किया है कि अगर जो बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मैं, जैसे उन्होंने बोला है, मैं उनको वो चॉकलेट्स गिफ्ट करूँगा. ओके, तो यस, चॉकलेट्स आपको आपके घर पे पहुँचेगी, आपको लेने भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं करना है. बट कंडीशन क्या है कि आपको उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है. अच्छा परफॉर्म से मतलब ये है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. ओके, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मैं आपको दूंगा आपकी फेवरेट चॉकलेट जो आपने मेरे को उस दिन बोली थी. ओके, तो दैट इज़ फॉर ऑल आवर टुडेज लेक्चर, बिकॉज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. तो वीडियो में अब आगे बचा भी क्या है. ठीक है, इज़न्ट इट. तो इसलिए अब अपना रिवीजन करना स्टार्ट करिए. ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है चैप्टर नंबर 2 से कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी. ओके, एंड ऑफ कोर्स मंडे को मैं आपको आपका प्रोजेक्ट बताऊंगा. ओके, आई कैन टेल यू नाउ बट लेट्स लीव इट टू मंडे. ओके, तो मंडे को मैं आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा इस मंथ का
मैं आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, और अपना रिवीजन स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 2 का, बिकॉज टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए घबराना नहीं है, आपको जो जितना आए उतना करना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट लगता है आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, आपके पास में जो टेस्ट का दिन है, जब भी टेस्ट होता है, अगर 10 को नहीं होता है तो बाद में होगा। ठीक है, लेकिन आप 10 तारीख की जो डेट है उसको तब इस डेट पे प्रिपेयर रहिए। ओके, तो मैं हो सकता है कि इस डेट पे आपका टेस्ट ले लूँ। ओके, तो अगर इस दिन का टेस्ट होता है तो आप भी रेडी रहिए। ठीक है, तो 10 तारीख से पहले जितना भी आपको डाउट्स निकलते हैं चैप्टर 2 के, आप मुझे फ़ोन लगा कर पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 10 तारीख को ही मेरे को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि सर ये नहीं आ रहा, तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको 10 तारीख से पहले बताना है, पूछना है आपके डाउट्स जो भी आपको लगते हैं। ओके, so students, that is for all our today's lecture, today's video, and this is all about our today's study material. Okay, and also this is all about our chapter number 2. Okay, so thank you very much and goodbye.